11th, dated 30th of April 2020. Today's topic is youth and the tasks ahead continues. And now we have to read the final and the fourth and the final aspect of national building, that is spiritual. First, we have read about physical, then second was intellectual, third was patriotism, and the final and fourth and final is, yes, spiritual dimension. Finally, there is spiritual dimension, which indeed is the main faculty that distinguishes human beings from the myriad of other forms of life that exist on this planet. फाइनली आखिर पर यहाँ जो है स्पिरिचुअल डायमेंशन, स्पिरिचुअल मीन्स रिलेटेड टू सोल, sacred dimension, which of course is the main faculty, जो मेन एबिलिटी है, मेन एबिलिटी और सेंस या एप्टीट्यूड या स्किल है इंसानों की, ह्यूमन बींग्स की, दैट डिस्टिंग्विशेस ह्यूमन बींग्स फ्रॉम, जो अलग करती है, डिस्टिंग्विश करती है, सेपरेट करती है इंसानों को from the myriad other forms of life that exist on this planet. On Lateda, many, myriad means many. Yes, myriad means many, a lot, or actually it means 10,000. So here it refers to many forms of life. Other forms of इंसानों के बगैर जो जानदार चीज़ों की शक्लें हैं, उनको that exist on this planet, that are present on this planet. Exist means or present. EXIST, exist, that exist on this planet, जो इस ज़मीन पर हैं, इस सैर पर हैं. Yes, students, at a time of deep crisis, we must be endowed with a new spiritual power, leading to that fearlessness and dynamism, whereby we can overcome all difficulties. Now the author says, at a time of deep crisis, when there is high demand, crisis, जब बहरान होता है, इंग्लिश में कहेंगे क्रिटिकल मोमेंट और टर्निंग पॉइंट और शॉर्टेज, उर्दू में कहेंगे बहरान, पेचीदगी और नाजुक वक्त जब होगा, तो उस वक्त क्या करना है? We must be endowed with, we must be furnished with, it means we must have, हमारे पास होना चाहिए a new spiritual fervor, एक नई रूहानी ताजगी. Fervor means enthusiasm. Yes, it means zeal, it means passion, it means जज्बा. हमारे पास एक रूहानी जज्बा होना चाहिए. Leading to that fearless, उसे क्या हो जाएगा? उसे, yes students, उसे क्या हो जाएगा? fearlessness, यानी उसे बेखौफी पैदा होगी, dynamism पैदा होगा. Yes, what is dynamism? Dynamism being progressive, being energetic, यानी जो हम जहात हो ऐसा. हाँ, dynamism whereby we can overcome all difficulties. इस तरह हम तमाम जो मुश्किलात है उन पर overcome, उन पर control कर सकते हैं. Yes students, when I speak of spirituality, I am not referring merely to denominational religion, howsoever inspiring that may be. Author says, when I speak of spirituality, जब मैं रूहानियत की बात करता हूँ, yes, spirituality, related to spirit. हाँ, जब मैं रूहानियत की बात करता, I am not referring merely to denominational religion. मेरा इशारा सिर्फ उस खास मजहब की तरफ नहीं है. Designated religion or denomination means connected with a religious group, किसी मजहबी फिरका के बारे में नहीं, मेरा इशारा उसकी तरफ नहीं है. Howsoever inspiring that may be, howsoever is adverb, it means to whatever extent, किस
डिवाइडेड होगा। और ओवर्स इज ए नेशन, हमारा जो हिंदुस्तान है ये वो कौम है that has from time immemorial cradled in immense variety of religions, and today in free India people belonging to all faiths live together in peace and harmony। हमारा जो हिंदुस्तान है ये फ्रॉम टाइम इमेमोरियल मीन्स कदीम जमाने से, सिंस एज क्रेडल्ड यानी उसने पाला पोसा है, जैसे झूले में पालते हैं पोसते हैं, इसी तरह उसने नर्चर किया है, नर्चर्ड एन इमेंस वैरायटी ऑफ रिलीजन, एक बड़ी तादाद इसकी रंगारंगी मजहबों की। एंड टुडे इन फ्री इंडिया, आजकल आज़ाद हिंदुस्तान में पीपल बिलोंगिंग टू ऑल फैथ्स, जो लोग ताल्लुक रखते हैं, फैथ्स मीन्स रिलीजन, लिव टुगेदर इन पीस एंड हार्मनी, वो एक साथ रहते हैं अमन के साथ, हम आहंगी के साथ, पीस एंड हार्मनी। यस, हार्मनी यू नो इट मीन्स पीस, इट मीन्स यूनिटी, उर्दू में कहेंगे मेल या हम आहंगी। व्हाट आई एम रेफरिंग टू, मेरा व्हाट आई कोट, हाँ मेरे मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, इज टू दैट गोल्डन थ्रेड ऑफ यूनिटी, मेरा इशारा है जो सुनहरी जो फैब्रिक है, थ्रेड है यूनिटी का, एकता का, विच रन्स थ्रू ऑल रिलीजन, जो चलता है हाँ तमाम मजहबों के दरमियान, एंड फ्रॉम विच दे ऑल अल्टीमेटली डिराइव पावर एंड सस्टेनेंस, और जो ये थ्रेड है, ये फैब्रिक जो है ये जिसे ये तमाम आखिर पर डिराइव करते हैं, गेट, डिराइव मीन्स गेट, हासिल करते हैं पावर, ताकत, एंड सस्टेनेंस, सस्टेनेंस मीन्स लिविंग और सेल्फ सस्टेनेंस मीन्स स्ट्रेंथ। यस स्टूडेंट्स, दिस इम्प्लाइज, इट मीन, इसका मतलब है द एक्सेप्टेंस ऑफ द डिवाइनिटी इनहेरेंट इन एवरी ह्यूमन बीइंग, यानी वो एक्सेप्टेंस मीन्स अप्रूवल, वो मंजूर करते हैं, किसकी मंजूरी करते हैं, ऑफ द डिवाइनिटी, डिवाइनिटी मीन्स गॉडली, खुदा का होना, जो उनमें, यस उनमें क्या है, इनहेरेंट यानी इनबॉर्न है, यानी उनमें ये नेचुरल है, इन एवरी ह्यूमन बी, हर इंसान, हर बनी नुआ इंसान में। यस स्टूडेंट्स, एंड ऑफ द नोबल गोल, नोबल, yes, noble means honored, umda, azim, morally upstanding, क्या है, yes, and of the noble goal, और जो ये सुनहरी मकसद है, noble, अजीम मकसद है, of spiritual growth, यानी रूहानी तरक्की का realization और जज्बे का, a concept that at once raised, तो उनसे क्या पैदा होता है, कंसेप्ट, एक तासुर, एक ख्याल, एक तस्वुर, a concept that at once raises the dignity of individual, at once means यकबार या simultaneously वो इंक्रीज करता है the dignity, किसी का जो रेस्पेक्ट है, इज्जत है, और the individual फर्द का, and cuts across all narrow barriers and distinctions, इट कट्स, ये चीर के जाता है, ऑल नेरो, जो नेरो मीन्स तंग, बैरियर्स मीन्स बाउंड्रीज या हदूद, उनको पार करके आगे बढ़ता है, एंड डिस्टिंक्शन, ये डिस्टिंक्शन मीन्स डिफरेंस, यानी ये न जो तंग हदूद होते हैं उनको देखता है, न जो डिफरेंस है उनको देखता है, बल्कि ये क्या करता है, ये इंसान की डिग्निटी को बढ़ाता है, चाहे फर्द हो या इज्तिमाई तौर। Yes students, indeed the principle of individual divinity spiritual illusion is one, indeed means of course, बेशक, really जो प्रिंसिपल, जो बेस है, हाँ, ऑफ इंडिविजुअल डिवाइनिटी, जो फर्दन यानी एक पर्सन की डिवाइनिटी जो है, हाँ, डिवाइनिटी हियर मीन्स गॉडलीनेस, यस, एंड स्पिरिचुअल इल्यूशन, और जो रूहानी तरक्की है, यू नो एवोल्यूशन उर्दू में कहते हैं तरक्की, इट मीन्स ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन, यानी बढ़ती हासिल होती है, इस वन वो एक ही है, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिविनिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, दैट इज वन, which transcends, you know, it means which goes beyond, जो पार करता है, which goes over, passes over even national boundaries,
जो कौमी हदूद होते हैं, सरहद होते हैं उनको, एंड इट अलोन कैन गिव अस करेज, और यही सिर्फ हमें दे सकता है हिम्मत टू फाइट, कि हम जदोजहद करें, लड़ें फॉर आवर फ्रीडम, हमारी आज़ादी के लिए, एंड इंटीग्रिटी और यूनिटी के लिए, एकता के लिए, विथ अनडाइंग वैल्यू। अनडाइंग मीन्स दैट कैन नॉट डाई, और हियर इट मीन्स अनएंडिंग, जो खत्म होने वाला, न खत्म होने वाला है। वैल्यूअर मीन्स ब्रेवरी, बहादुरी, एंड द विजडम, और ये हमें क्या फराहम करती है, विजडम, हिकमत, दानाई, स्ट्रेटजी टू डू सो, ऐसा करना, विथ आउट हेट्रेड मीन्स विथ लव, और हेट्रेड मीन्स नफरत, इसका अपोजिट है लव, सो विदाउट हेट्रेड मीन्स विथ लव। Yes, students, please turn over your page. Now it is page number 48. The physical, intellectual, patriotic, and spiritual are the ones with which our young men and women must equip themselves, so that they can really be of effective service to the nation. Now the author says these dimensions are physical, these are intellectual, these are patriotic or patriotism, these are spiritual related soul, or the ones. Here ones refers to the dimensions with which, जिनसे our young men and women, हमारे जवान मर्द जन या मर्द और औरतें, must equip themselves, they must keep themselves ready. क्यों रेडी होना चाहिए, क्यों तैयार होना चाहिए, सो दैट दे कैन रियली बी ऑफ इफेक्टिव सर्विस टू द नेशन, ताकि वो हकीकत में मौसर तौर कौम की खदमत कर सके। डियर स्टूडेंट्स, नाउ needless to say these are words which modify a verb, so they are adverb. It means, these words mean clearly. Needless to say, this is a continuous process. Clearly, evidently, ये एक मुसलसल अमल है, ये स्टूडेंट्स, एंड द वेरी एक्ट ऑफ नेशनल सर्विस, और ये जो अमल है इसका, कौमी खदमत का, इट्सेल्फ बजात खुद हेल्प्स टू डेवलप दिस कैपेसिटी, ये मदद करता है, ये कैपेसिटीज जो है इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, पेट्रियोटिक, स्पिरिचुअल, उनको बढ़ावा देने में मदद करती है। What is required on the part of our youth is a keen sense of participation. क्या जरूरत है हमारी जवानों से, ऑन द पार्ट ऑफ यूथ, उनकी तरफ से, यूथ जवान इज ए कीन सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन, वो क्या है, शाबाश, कीन सेंस मीन्स ए शार्प रियलाइजेशन, उनको जबरदस्त रियलाइजेशन होनी चाहिए। किसके लिए, पार्टिसिपेशन, यानी उनको रोल अदा करना है, उनको अपना रोल निभाना है। इन व्हाट participation in what Jawaharlal Nehru used to call the great adventure of national building, किसमें, बकौली जवाहरलाल नेहरू, जो हिंदुस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर भी थे, वो कहा करते थे, क्या करते थे, ग्रेट एडवेंचर ऑफ नेशनल बिल्डिंग, कौमी तामीर का अजीम कारनामा। यू नो व्हाट इज एडवेंचर? यस यू नो, एडवेंचर मीन्स एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, मुहिम जोई कारनामा, यानी ये एक अजीम कारनामा है कौमी तामीर का। यस स्टूडेंट्स, देयर इज नो रूम हियर फॉर साइनिसिज्म और डिफीटिज्म, बोर्डम और डिप्रेशन। रूम हियर मीन्स प्लेस, यहाँ कोई जगह नहीं है, इसमें जब हम कौम को बनाएंगे, नेशनल बिल्डिंग करेंगे, ना साइनिज्म मीन्स जिसमें हम क्या करते हैं, साइनिसिज्म मीन्स पेसिमिज्म या नाउमीदी होनी चाहिए, न सरकासम और खुशक मिजाजी होनी चाहिए। न यहाँ वो क्या कहते हैं, डिफीटिज्म मीन्स एक्सेप्ट और डिफीट, यानी शिकस्त तस्लीम करना, इसका सवाल नहीं होना चाहिए, इसके और रूम उसके लिए जगह नहीं है। बोर्डम यानी यहाँ टायर्डनेस, थकान की कोई जगह नहीं है, और डिप्रेशन जिसको आप उर्दू में तनाव बोलते हैं, उसकी भी कोई जगह नहीं, यानी यहाँ चार चीजों को जगह नहीं है, साइनिसिज्म, defeatism, boredom, depression. Yes, students. In whatever position our youth may find themselves, हमारे बच्चे लोग, हमारे जवान लोग, उन अपने आप को किस पोजीशन में पाएंगे, there are always numerous avenues for national service. हमेशा बहुत सारे avenues, जराया मीन्स कौमी खदमत के हैं,
यानी कौन किस शोबे में होगा वो उस शोबे के लिहाज से वो कौम की खदमत कर सकता है. Yes students, these may not be such as to hit newspaper headline, लेकिन कोई ये सोचे कि मैं खदमत करूं ताकि मैं अखबार की सुर्खियों में आऊं. आप जानते हैं हेडलाइन हो जो मोटी लाइन होती है, हाँ, उसको कहते हैं हेड न्यूज़पेपर हेडलाइन. बस वो किसके लिए होता है? वो सिर्फ शोहरत के लिए होता है. बट द ऑथर सेज इट इज सॉलिड. ये सॉलिड होनी चाहिए, कंक्रीट होनी चाहिए, एंड डिवोटेड एक्टिविटी, ये डेडिकेटेड एक्टिव होना चाहिए जिसमें अपने आप को कोई वाकफ करे. हाँ, और क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाइड ए मिलियन फोल्ड. मल्टीप्लाइड हियर मीन्स इंक्रीज. ये एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए, इट मस्ट बी इंक्रीज. यू नो मिलियन मीन्स 10 lakh. Million fold means 10 lakh times. It means many times. That truly builds the fabric of a great nation. जो सच्चे और हकीकत में कंस्ट्रक्ट करता है, तामीर करता है. फैब्रिक हियर मीन्स स्ट्रक्चर, टेक्सचर किसी अजीम मुल्क का. यस स्टूडेंट्स, फैब्रिक को उर्दू में कहेंगे ताना माना. यस. नाउ लास्ट पैरा, नहीं लास्ट बट वन पैरा. There remains the important question of the opportunity. Now there is important question. There is the important question of opportunity, chance, मौका, which we must provide our youth. ये हम जो हमें फराहम करना है, प्रोवाइड करना है अपने जवानों को. किसके लिए? For serving the nation at this crucial juncture. कौम की खदमत करें इस अहम मौके पर. There is so much to be done. या इतना करना है, यानी बहुत सारे काम भी, यानी भी थोड़ा गया बहुत रहा, या थोड़ी गई तो बहुत रही. There is so much to be done. Yes. Then there is colon. Colon when there exists between a sentence, it means explanation. So students, there is civil defense measures to be strengthened. जो सिविल डिफेंस यानी सलामती के इकदाम हैं उनको मजबूत करना है. कहाँ पे? इन अर्बन एज वेल एज रूरल एरिया. अर्बन मीन रिलेटेड टू टाउन, रूरल मीन रिलेटेड टू विलेज. दोनों जगह ये इसको स्ट्रेंथन करना है. देन देयर इज ए नेटवर्क ऑफ नर्सिंग. ये मस्ट बी होना, नर्सिंग का एक जाल होना चाहिए. फर्स्ट एड होना चाहिए. फर्स्ट एड मीन्स जो फूड इलाज करते हैं. एंड ब्लड बैंक सेंटर्स, यानी फर्स्ट एड सेंटर्स भी होने चाहिए, ब्लड बैंक सेंटर्स भी होनी चाहिए. टू बी एस्टेब्लिश्ड, इनको कायम करना है. टू बी सेटअप. यस स्टूडेंट्स, देयर शुड बी द वेलफेयर ऑफ ब्रेव सिक्योरिटी फोर्सेस. जो हमारी ब्रेव सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, बहादुर सलामती फोर्सेस हैं, उनकी बेहतरी के लिए, बेटरमेंट के लिए काम करना होगा. हु हैव सैक्रिफाइस्ड सो मच ऑन द बैटलफील्ड टू बी फर्दर. क्या करना है? वेलफेयर जो हमारे ब्रेव सिक्योरिटी फोर्सेस का, जिन्होंने क्या किया है? सेक्रीफाइस किया है, बलिदान दिया, शाबाश, कुर्बान किया है, इतनी कुर्बानी दिया ऑन द बैटलफील्ड, मैदानी जंग में. टू बी फर्दर, उनका जो वेलफेयर है, उनकी जो बेटरमेंट है, उसको बढ़ावा देना है. फर्दर मीन्स इंक्रीज. यस स्टूडेंट्स, द डिपेंडेंस ऑफ दोज हु मेड सुप्रीम सैक्रिफाइस टू बी हेल्प्ड एंड कंफर्टेड. व्हाट इज टू बी डन? ये क्वेश्चन जो हमने कहा था ना, देयर इज सो मच टू बी डन, इट कंक्लूड्स. क्या करना है? डिपेंडेंट्स ऑफ दोज हु मेड सुप्रीम सैक्रिफाइस. डिपेंडेंट मीन जो इन्हिसार करते हैं, जो उनके औलाद हैं या घरवाली या बाबा होगा वगैरह, वो उनके डिपेंडेंट्स हो गए. ऑफ दोज हु मेड सुप्रीम सैक्रिफाइस, जिन्होंने इतनी अजीम बलिदान दिया है, कुर्बानी दी है. टू बी हेल्प्ड, उनको मदद करना है. कंफर्टेड, उनको कंफर्ट देना है. यानी उनको सहूलियात देना है. नेक्स्ट इज क्रिमिनल हार्मोनी टू बी मेंटेन, यानी फिरका वाराना हम आहंगी इसको बरकरार रखना है. यस, हार्मोनी मीन्स पीस, यानी ऐसा माहौल जिसमें सभी फिरके के लोग अमन शांति के साथ रहे. दैट इज नोन एज हार्मोनी. मेंटेनेंस को कायम रखना है. द होल प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलप एंड रिकंस्ट्रक्शन टू बी स्पीडेड. अब लास्ट में क्या कहता है? जो पूरा अमल है माली तरक्की का, इक्तिसादी तरक्की का, एंड रिकंस्ट्रक्शन,
यानी तामीर नाव जो है उसको भी स्पीड अप करना है या इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। द वास्ट एरियाज ऑफ पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस दैट स्टिल एग्जिस्ट टू बी क्लियर्ड। जो बड़े बड़े एरियाज हैं, शोबे हैं, यानी किसके, पॉवर्टी के, गुर्बत के, इफलास के। इग्नोरेंस मीन्स इलिटरेसी के, इंडिफरेंस के, दैट स्टिल एग्जिस्ट, जो अब भी हमारे हम मौजूद है, टू बी क्लियर्ड, दैट आर टू बी रिमूव्ड। यस स्टूडेंट्स, द फैब्रिक ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी टू बी स्ट्रक्चर। जो फैब्रिक है, स्ट्रक्चर है हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी का, इसको स्ट्रेंथन करना, इसको फोर्टिफाई करना। यस स्टूडेंट्स, these and 1,000 other problems confront us today. एक तो ये प्रॉब्लम है, इसके अलावा हजारों दूसरी प्रॉब्लम हैं, मसाइल हैं, they confront us today, they face us today, जिनका हमें आज सामना है। Surely यकीनन it should not be beyond our ingenuity। हाँ, यकीनन ये नहीं होना चाहिए beyond, यानी हमारी जो सिकल है, हमारी जो इंजीनियरिटी सिकल है, उससे बाहर नहीं होना चाहिए। To organize a vast national youth, surely it should not be beyond our ingenuity, our skill to organize, ताकि हम organize करें a vast national youth movement, एक वसी कौमी जवानों की एक तहरीक। तो वो कैसी होना चाहिए? Which transcending all political, criminal, regional and linguistic diversity, and which is going beyond, जो इन चीजों से बाला होगी। किन चीज़ों से? तमाम सभी, पॉलिटिकल, सियासी, क्रिमिनल मीन्स फिरका वाराना, रीजनल इलाकाई, एंड लिंग्विस्टिक मीन्स लिसानी, रिलेटेड टू लैंग्वेज डाइवर्सिटी डिफरेंसेस हैं, यानी उनसे ये बाला होनी चाहिए। Then it can mobilize, we can mobilize our youth for the noble task। फिर ये क्या कर सकती है? मोबिलाइज कर सकती है, मुतहरिक कर सकती है हमारे जवानों को फॉर द नोबल टास्क, फॉर अजीम काम के लिए। कौन सा अजीम काम? ऑफ डिफेंडिंग इन डेवलपिंग फ्री इंडिया। एक तो डिफेंड कर सकती है, तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है, डेवलप, तरक्की करवा सकती है फ्री इंडिया जो आज़ाद हिंदुस्तान है। एंड कैनलाइज द माइटी upsurge of patriotism that we may have witnessed in recent times। और ये कैनलाइज कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है माइटी अपसर्ज, सुप्रीम फ्लो। इसका सुप्रीम फ्लो ऑफ पेट्रियटिज्म, लव फॉर नेशन, दैट वी मे हैव विटनेस्ड इन रिसेंट टाइम्स, जो हमने देखा हाल ही के जमाने में, रिसेंट। यस, लास्ट पैरा। The younger generation today faces challenges graver than any which their forefathers were confronted। एक अहम बात है, यंगर जनरेशन जो आजकल की है वो फेस करती हुई है, मुकाबला करती है चैलेंज, जो मसाइल हैं, ग्रेवर मीन्स हार्डर, यानी संगीन है, देन एनी विद विच देयर फोरफादर्स वर्क, बनिस्बत उन मसाइल के, उन चैलेंजेस के जिनका सामना उनके फोर फादर्स, दादे परदादे, प्रेडिसेसर को करना था। What is at stake? What is at stake means what is at risk? Is nothing less than whether a secular and democratic nation, वो इससे कुछ कम नहीं, if a secular means we doesn't favor any religion, and democratic where all citizens have equal rights, such a nation founded on the principles of, here founded means based on the principles of, जिसकी बुनियाद है किसके उसूलों पर? Justice, इंसाफ, liberty means freedom, yes, equality means मसावत, बराबरी, fraternity means brotherhood, भाईचारा, then can survive in this nuclear age, फिर वो क्या बाकी रह सकते हैं इस न्यूक्लियर एज में। न्यूक्लियर एज, यू नो, व्हेन वी यूज न्यूक्लियर एनर्जी, atomic energy. Destiny has given us privilege of providing the answer to this momentous question। जो लक है या फेट है, उसने हमें ये मौका दिया है, या स्पेशल राइट दिया है ऑफ प्रोवाइडिंग द आंसर, कि हम प्रोवाइड करें, फराहम करें जवाब किसको? टू दिस मोमेंटस क्वेश्चन, जो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वजनदार क्वेश्चन है।
and I am confident. ऑथर कहता है आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे एतमाद है, भरोसा है, that when the history of this turbulent era comes to be recorded, जब तारीख लिखी जाएगी, turbulent means जिसमें क्या जाएंगे, सडन चेंजेस आएगी, सडन चेंजेस आएगी, उसको कहते हैं turbulent, turbulent